Hello students. So today we are going to start a new topic, formal and informal organization. In the earlier session we discussed about the functional and divisional organizational structure, that was organizational structure, but now we are talking about the type of organization, that is the formal and informal organization. Fine. So what is formal organization? आप लोगों को स्केलर चेन याद होगी, हम लोगों ने फ्योल के प्रिंसिपल्स में की थी, दैट दिस इज द स्केलर चेन. फाइन. द person is designated to perform the task and all the line of communication is pre-decided. So in any organization, all the employees are guided by some rules, some procedures. And why this is important? This is important for the smooth functioning of the enterprise. The specific job description is there. All the rules regarding to performance of any task is mentioned. So what we can say, that formal organization refers to the organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task. Actually the formal organization clearly set the boundaries of authority and responsibility. Like ये हमारा एक organization है और इस organization में these are the roles specified. These are the roles, the authority, responsibilities are specified so that the proper coordination between all these activities can be set up. Because अगर इन सभी activities में coordination ही नहीं होगा तो organization अपने objectives को achieve नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो हमें एक systematic coordination चाहिए और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका फंक्शनल एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, डिविजनल में डिविजनल के अकॉर्डिंगली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा एंड फंक्शनल में फंक्शन के अकॉर्डिंगली होगा. ओके, ऐसे देखिए, दिस इज द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के अंडर में हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर इनके अंडर में अलग अलग डिविजन्स हैं. तो दिस इज कम्प्लीटली एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड. इस चार्ट से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि प्रेसिडेंट इन तीनों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर ये अपने नीचे वालों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, हु विल गोइंग टू रिपोर्ट टू whom, all the relationships are specifically mentioned. like आपके स्कूल में भी होता है ना कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपके क्लास टीचर कौन हैं, आपके HOD कौन हैं, आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, आपके स्पोर्ट्स के कोच कौन हैं, अगर आपको अपनी फ़ी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बात करनी है तो किससे करनी है. तो अलग अलग वर्क्स के लिए अलग अलग आपके लोग होते हैं. तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. आपको अगर अपने से रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप अपने क्लास टीचर के पास जाएंगे. अगर आप किसी दूसरे टीचर के पास चले गए तो क्या होगा, वो टीचर क्या कहेंगे, बेटा अपनी क्लास टीचर के पास जाओ. इन द सेम मैनर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्मल सेटअप होता है, एक प्रॉपर हिरार्की होती है. फाइन, इस तरह से हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा सेटअप करते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, सो दिस इज़ वेरी क्लियर. It specifies the relationship among various job positions. हर job position में क्या क्या relationships हैं, that is specifically mentioned. It lays down all the essential rules and procedures. Various departments are coordinated and interlinked and integrated because it is deliberately designed. ये बनाया ही जाता है जानबूझ के कि this is the top position and these are the person who will going to work under this top position and then they are going to work under this person. So this is basically gives
more emphasize on work to be performed. क्या काम परफॉर्म करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फीचर्स से ही हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी. अगर सबका क्लियरली मैंशनड है तो कोई एम्बिग्यूटी होगी ही नहीं. यूनिटी ऑफ कमांड तो है ही. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्केलर चेन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, if we are talking about the adequate role and position of each personnel, then unity of command is automatically managed. Then effective accomplishment of predetermined goals and provide stability to the organization. Because किसी भी organization में अगर एक rules and procedures की पूरी एक formal way है, if there is any rule book which governs the procedure of any organization, then that organization will be more stable. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कुछ भी जिसका जो मन करेगा वो काम करेगा, चल पाएगा ऐसे? आप खुद सोचिए. अभी आपके स्कूल में हर सब्जेक्ट के पीरियड्स डिफाइन होते हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा पीरियड रहेगा. अगर ये डिफाइन नहीं हो तो कितना क्योस हो जाएगा, कब कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, किस समय पढ़ाएंगे, कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे. अगर ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं हो तो कितना क्योस हो जाएगा. सो बट ऐसा होता है ना, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. कुछ लिमिटेशंस तो रहेंगी, प्रोसीजरल डिले हो जाता है. कभी अचानक से कोई डिसीजन लेना हो, अर्जेंट डिसीजन लेना हो, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये कई बार प्रोसीजरल डिले कर देता है. एंड दे आर मोर रिजिड because they are going to a proper channel. We can't go beyond this channel, तो they are more rigid. उनमें flexibility नहीं होती बिल्कुल भी. And correct analysis of human behavior is difficult. आप सब लोग एक बाउंड्री में चल रहे हैं. एक्चुअली में अगर कोई उस बाउंड्री से बाहर होके हो सकता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है, बट हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें अलाउ नहीं कर रहा. तो हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को एग्जैक्ट एनालाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट ह्यूमन पर एम्प्लॉय इज वर्किंग विद इन द बाउंड्रीज. ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी मूव टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं कि मैंने कहा कि एजुकेट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपकी क्लास टीचर, आपके क्लास के सेक्शंस, एवरीथिंग इज़ डिफाइंड. बट कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती जो है वो किसी दूसरे सेक्शन के बच्चे से है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने किसी उस टीचर से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं जो टीचर आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं. समटाइम्स इट हैपन्स. ठीक है, तो किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होता है. पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे टॉक टू ईच अदर ड्यू टू देयर इमोशनल satisfaction, the social relationship. So the network of social relationship among the employees is informal organization. When people in the organization interact with each other, fine. Why? Because to satisfy their social relationship needs and their emotional needs. Okay, they do talk on all the different topics which are not included in their job profile. हो सकता है आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, आप अपने किसी टीचर से शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, बट यू आर टॉकिंग. सो actually the informal organization always emerges within the formal organization, because due to the school you are in that organization and that's where you meet some other people and you make friends. कोई रिटर्न रूल नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है. आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ बात कर रहे हैं. कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. हो सकता है आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो ये कहती है कि आपको अपने मॉनिटर को बोलना है, फिर मॉनिटर आपकी क्लास टीचर को बोले, क्लास टीचर HOD को, एंड HOD वाइस प्रिंसिपल, एंड देन वाइस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल. बट ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. मे बी आप डायरेक्ट अपनी HOD से मिल सकते हैं, आपने डायरेक्ट उनसे मिल ली, आपने कहा कि मैम वैसे तो मुझे प्रॉपर चैनल से आना चाहिए बट आई वांट टू टॉक टू दिस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो कर सकते हो आप ऐसा.
ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल इतना अच्छा है कि फॉर्मल होना ही नहीं चाहिए. एक्चुअली फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट. फाइन, अब हम इसके बारे में भी डिटेल में करते हैं. लाइक फीचर्स क्या हैं? It emerges as a personal interaction among employees because employees are personally interacted in any, मान लो मीटिंग होती है, कुछ एनुअल फंक्शन होता है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स में दे कम एंड मीट. सो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स. आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, उन ग्रुप्स ने अपने नॉर्म्स बना लिए कि अब हमारे दोस्ती के ग्रुप में तो ना वही बच्चा आएगा जो हमारी ये बातें मानेगा. ठीक है ना, आप लोगों के होती है ना दोस्ती, अब कोई बच्चा आया मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो, तो आप क्या कहोगे, भाई हमारे ग्रुप में आने के लिए तो ये बातें माननी पड़ेंगी. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, एक कॉरपोरेट कंपनी में भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ऐसे ग्रुप बन जाता है, तो अपने ग्रुप नॉर्म्स होते हैं. फाइन. इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई स्केलर चेन नहीं है, कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है. इंडिपेंडेंट चैनल है जिससे जब मन कर रहा है, जो मन कर रहा है बात कर सकता है. इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली. आपके ऑफिस का, आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है, आप वहीं पे उनसे मिले किसी से और वहीं पे दोस्ती हो गई, स्पॉन्टेनियसली इमर्ज हो गया. कोई रिटर्न परमिशन नहीं लेनी पड़ी, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं निकालना पड़ा, नथिंग. नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसमें कोई पोजीशन ही नहीं है ना. कोई बॉस नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है ही नहीं. ऑल आर इक्वल. सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है प्रॉपर चैनल से आने में टाइम लग जाए और वैसे वो इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी मिल जाए. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मान लो आपके स्कूल की कोई मैम है, वो आपकी मम्मा की फ्रेंड है, तो उनकी मैम ने बोला कि हो सकता है हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हो जाए, या आपका कहीं कोई सिलेक्शन हो गया है सपोज़, और आप जो है जिन डेट्स में आपका उस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है, उस डेट पे आपका कोई फैमिली ट्रिप लग रहा है, तो आपकी मम्मा ने बोला हम लोग उस दिन जा रहे हैं. अब आपकी टीचर को लग रहा है कि अरे यार इसका सिलेक्शन हो गया है, एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो इसके पास जाने में टाइम लगेगा, तो उन टीचर ने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि अरे देख लो, अगर नहीं जा सको तो मत जाओ, क्या पता इसका सिलेक्शन हो जाए. तो फिर आपको लगेगा ना, हाँ यार क्या पता हो जाए, मैम ने बोला है. तो क्या होगा, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई, बेसिकली ऑफिशियली नहीं मिली बट मिली तो. सो इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है, बिकॉज एवरी पर्सन नीड सम अदर पर्सन विच सेटिस्फाई द सोशल एंड इमोशनल नीड्स. आजकल हम सभी लोग बहुत मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती क्यों है? बिकॉज हम अपनी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. सो वी मस्ट सेटिस्फाई our social, communication and emotional needs so as to avoid mental health illness. Okay, so it enhances job satisfaction and sense of belongingness. कई बार होता है ना, आपको स्कूल जाने का मन नहीं है, फिर भी आप स्कूल जाना पसंद करते हो. क्यों? अरे दोस्तों ने बोला है आज ज़रूर आना है. ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. द एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, उनको लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, बिकॉज वहाँ पर उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उनको ये लगता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है. आपको लगता है कि ये हमारा स्कूल है, ठीक है, बट हाँ कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ही, बट ऑब्वियस है. लाइक कई बार र्यूमर्स भी फैल जाती हैं. आपको टीचर ने आपकी भलाई के लिए बोला आपकी मम्मा को कि आप देख लो नहीं जाओ, और आपने अपने दोस्तों में ये बात फैला दी मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, तो ये तो रूमर हुई ना. आपने बात कैसे फैला दी? हो सकता है ना भी हो. फिर तो रूमर्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं. मे वर्क एज हिंड्रेंस इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान.
कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी प्लान का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जस्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ट्रिगर होकर वर्क कर रही हैं। इसमें हम लोग लेबर यूनियन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेबर यूनियंस जो होती हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं। कई बार वो लोग अपनी बात पूरी करवा ही लेते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात को नहीं मानते, एंड मे मिसलीड मेंबर्स टू कन्फर्म द ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। कई बार मिसलीड भी कर जाते हैं। फाइन, सो ये हमने पढ़ा अबाउट इनफॉर्मल। दिस इज अ वेरी general overview, the comparative view of formal and informal organization, like meaning, that is formal organization is the structure of authority relationship created by the management, and this is the network of social relationship. The origin of it is the rules and policies of company, although its origin is social interaction. In the formal organization, the authority arises through position, but यहाँ पर personal qualities, ग्रुप में जो जिसकी personal traits ज़्यादा superior या ज़्यादा powerful होंगे, that person will govern the group. ठीक है, यहाँ पे rules के through behavior होता है, लेकिन यहाँ पे कोई set pattern नहीं है. The communication takes place through scalar chain, जबकि यहाँ पे कोई planned route नहीं है. This is rigid, this is flexible, and managers and आर ऑलवेज लीडर्स. यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता. हाँ, आप ग्रुप में कह ज़रूर सकते हो कि आप हमारे ग्रुप का लीडर ये है, हम इसी की बात मानेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. म्यूचुअल कंसेंट से बनता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, होप you understand the difference between the formal and informal organization and why this is important, because in all the organization, for the smooth functioning of formal organization, informal organizations are must, but within some limit. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हावी हो जाएं, उनको सुपर पास नहीं कर देना है, ठीक है, बल्कि हमें एक अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जो इन दोनों के ही एडवांटेजेस को लेकर काम करे. सो ऑलवेज बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रादर टू surpass any organization. Okay, so thank you so much and good luck to all of you. Thank you.